So, as we've seen, there was obviously a lot of prep involved, lots of running up and down the stairs, going into the parks, but there's always a case of expectations versus reality. So, ऐसी कोई चीज़ हुई हो जो आपकी तैयारी ना की होए, जो आप लोगों ने फिल्म में ना बताई हो, I'm sure the audience and I would love to hear that. Thank you so much for having us on stage. First of all, I would like to express our gratitude on behalf of all our team members for making us part of this remarkable project and then holding this wonderful event, which is, I think, beyond our expectations. So, yes, absolutely. It was once in a lifetime experience for all of us. It was very challenging on one side, and then it was equally rewarding because there we get to experience the nature in its true form. On the challenges side, weather was very harsh. We couldn't predict it in Lahore. It was like cold in one moment, and after it changes very rapidly, and then after some time, it's very hot and it's like scorching heat, and you can't find any shade over there. So it was our biggest challenge. And then the track itself was very challenging because sometimes you're walking on a dirt trail, and then afterwards you're walking on a sandy trail, and then it was rocking trail sometimes, and then in the end we have to walk on the ice as well. So all these challenges were there, which we couldn't predict here. We practiced a lot here, but these challenges you can only face there. But on the other hand, the nature we experienced there, you can't even imagine. It was beyond our wildest imagination. So it was rewarding. Days were difficult, but at the night, the scenes there, it mesmerizes you, and I think I cannot do justice with my words what we experienced there. So anything else, please? Like Safan said, it is beyond explanation and it was beyond expectation also. हमारी preparation काफ़ी अच्छी थी. We can call it कि 80% हम prepared थे. कुछ surprises थे वहाँ पे, क्योंकि normally जब आप K2 का सोचते हैं तो हमें एक वो brand है जो कि injurious to health है, उसकी एक picture ज़हन में आती है. तो उसमें बर्फ़ नज़र आती है, लेकिन हमें वहाँ जाके जो experience था वो extreme dust का था. और जो धूप थी वो मेरे ख्याल में काफ़ी अनप्रडिक्टेबल थी. फिर हमारा जो गेट था वो नॉर्मली हम जो सुबह निकलते थे तो काफ़ी इक्विप्ड होते थे. फिर हमें फिर एक एक्सरसाइज करनी पड़ती थी कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़ों को मैनेज कर रहे होते. ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. डिफ़िकल्टी ज़रूर थी, लेकिन हमारी प्रिपरेशन टॉप द लाइन थी. हमारा जो गेयर था, जो हमारे जब लोगों ने हमें वहाँ रिसीव किया, एंड देवर ऑफ द व्यू के वो बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड थे हम लोग. It went very good, and we are thankful to the management for providing this opportunity. Thank you. I like to add one thing. एक पॉजिटिव चीज़ भी थी कि we were expecting too much cold there, but the cold was the least thing which bothered us. Actually, जब आप mountains की तरफ जाते हो तो you anticipate, but it was the trip was in July. Yeah. लेकिन I think heat का ये unexpected एक element था जो which we were surprised to hear all of you share with us when you came back. जी, डस्ट का बहुत बड़ा फैक्टर था. जैसे सफान ने भी कहा कि रॉकी ट्रैक था, बट देयर वाज सम टाइम देयर वाज नो ट्रैक एट ऑल. सो यू कैन कैटेगराइज इट कि वो रॉकी था या क्या था. इसमें डेफिनेटली हमने जो प्रिपेयर किया था अपने आप को, उसके अंदर हमने अपने स्टेमिना को बिल्ड किया, बिल्डिंग चल रहे थे, वो पूरा मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया. और ये दो एलिमेंट जो अभी टीम ने डिस्कस किए हैं, हीट का और डस्ट का, ये हम वहाँ पे जाकर ही अंदाज़ा हो सकता है, उसको हम प्रिपेयर कर ही नहीं सकते थे यहाँ पे. और तीसरा एक एलिमेंट था जो अभी मेरे ख्याल ये बता नहीं रहे, तो वो वॉशरूम का था. वो भी बहुत बड़ा एक एलिमेंट था. तो ये I think again, if anybody noticed there were no women in the documentary, that's a big reason why. तो वो था. बट ये कि हमने जो 70% जो हमने यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर किया, रनिंग की, स्टेमिना बिल्ड किया, बहुत सारी अपने एक्सरसाइज की, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी हमने मूवीज़ देखी. बट ऑनेस्टली वहाँ पे बिल्कुल पिक्चर डिफरेंट थी जो हम यूट्यूब के ऊपर हम देख रहे थे. वो बिल्कुल पिक्चर एक्चुअली बिल्कुल डिफरेंट थी.
तो रियलिटी जो थी वो जो ये दो फैक्टर थे ये बहुत थे। अच्छा, उसके बाद डेफिनेटली जब हमें एक दो नाइट के बाद एहसास हो गया कि भाई ये कुछ हो रहा है जो, तो फिर हम आपस में बैठे, सारे टीम बैठे कि अब कैसे इसको करना है। तो थोड़ा सा हमने उसको री थिंक किया कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं कि डस्ट इतनी आ रही है। तो हम जो पीछे देख रहे थे, हम बिल्कुल साथ लगे थे, घबरा रहे शायद कोई गुम ना जाए ना, इधर उधर ना हो जाए, तो थोड़ा सा बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। इवन जो हमारे साथ वो जो चल रही थी चीज़ें, पोर्टर्स थे, वो बिल्कुल साथ साथ। फिर हमने डिस्टेंस मेंटेन किया थोड़ा सा, कि डिस्टेंस रखे ताकि थोड़ा सा डस्ट जो थी वो हमारी ही डस्ट हमारे वो हमें तंग कर रही थी। तो उसके बाद फिर वो जैसे मैंने कहा ऐसा मौसम था, सब चीज़ें थी, पर चल पड़े, तो फिर चल पड़े अल्लाह के फजल से, इस तरह हुआ है। जी जी, आई थिंक हमने जितनी एक्सरसाइज की थी फिजिकली, वी ऑल आर वेरी फिट। हम डेली तकरीबन 26-27 किलोमीटर वॉक करते थे। जब पहुंचते थे कैंप पे बड़ा काफ़ी थकावट होती थी, मगर फिर हम जब बैठ के गपशप करते थे शाम को, एक दूसरे को लतीफ़े सुना रहे होते थे, तंग कर रहे होते थे, तो वो सारी थकावट ख़त्म हो जाती थी। तो ये बेसिकली टीम वर्क है। एक टीम जो सबसे पीछे रह जाता था उसको हम लीड कर, उसको कहते थे भाई तुम्हारे पीछे सारे चल रहे हैं, ताकि कोई बंदा जो है वो पीछे ना रह जाए। तो आई थिंक इट वाज अ गुड शो ऑफ टीम वर्क एज वेल। I have a specific question for Davar that I would like to bring up. So, of course, from a trekking point of view, you've gone with the mission, you're on your journey, you have an intention in mind. Again, for Davar and the media team that had gone along, they were in a very different headspace. So, I'd like to hear from Davar his experience of filming, interviewing people. What was on the ground reality when you were essentially putting this entire documentary together? अच्छा, सबसे बड़ा हम लोगों को चैलेंज सबसे पहले जो फेस करना पड़ा था वो ये था कि जाने से पहले ना एंटिसिपेशन बहुत क्रिएट की जाती है इस बारे में कि अगर कोई K2 जा रहा है तो शायद कोई मौत ज़िंदगी मौत का सफ़र करने जा रहा है। तो इसी तरह हमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ था कि इवन अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा सॉक्स भी रखी हुई है बैग में, तो वो आपको जान का अजाब लगेगी कि आपको उसको उठा के चलने का दिल नहीं करेगा। यही हो रहा था हम सब लोगों के साथ जब हमें कैमरा निकाल के कुछ शूट करना होता था। बिकॉज ऑनेस्टली वीडियोस या विजुअल्स उसको जस्टिफाई या जस्टिस दे ही नहीं सकते कि किस तरीके से मेरी जो कैमरा की टीम थी, भाग रहे थे ये लोग, कैमरा निकालना, उसको शूट करना। और और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी पूरी टीम ने इस पूरे सफ़र से सीखी है वो रेजिलियंस है। जो रेजिलियंस इस सफ़र में आपको पैदा करनी पड़ती है अपने अंदर, वो मुझे लगता है कि इंसान शायद बहुत बड़े चैलेंजेस से ही सीखता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो इस सफ़र ने मुझे सिखाई है वो ये कि लंबे सफ़र के लिए मुझे लगता है कई बार हमें गोल्स के बजाय अपना सिर्फ पहला कदम देखना चाहिए कि वो कहाँ रख रहे हैं। और इसी आइडियोलॉजी के ऊपर हम लोगों ने पूरा फिल्म शूट किया है और उसी पे बनी है। मैं यहाँ पे सिर्फ एड अप करना चाहूँगा, जब ये नो डाउट के मीडिया की टीम थी, इवन ब्लू स्काई वाले ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। हम वापस आते थे, हमें वो बड़ी चीज़ें खाने पीना ये चीज़ें चल रही होती थी। तो जब हम पहले कैंप पे पहुँचे तो वहाँ पे जनन थे, वो मुझे कहते हैं आपके पास फ्लैग कितने हैं? मैं कहता हूँ खैर है, क्या बात है, क्यों फ्लैग्स का क्यों पूछ रहे हो ABL के? तो ही सेज के नहीं बस वैसे ही, आबिद भाई वो फ्लैग्स कितने हैं आपके पास? मैं कहा यार 2-3 हैं। तो क्या एक फ्लैग आप हमें भी दे दें? मैं कहा अच्छा। हम आपस में बैठते थे, हम कहते थे यार ये लग रहा है शायद ये नहीं जा सकेंगे, वो ये सोचते थे शायद ये नहीं जाएंगे, तो फ्लैग हम ही लेके जाएंगे। तो जब हमने आपस में रिकनसाइल किया चीज़ों को, तो मैं कहा भाई फिक्र ना करो, फ्लैग हम ही लेके जाएंगे, तुम टेंशन है लो, हम साथ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बड़ा वो फनी सी वो बातें चलती थी साथ साथ, और वो पूरा एक टीम को साथ लेके चलते थे। तो बड़ा अच्छा वो एक लगता ही नहीं था कि ये ABL की टीम से अलग है, वो हमारे अपना घर ही लगता था। जिस तरीके से हम आते थे तो ब्लू स्काई वाले की टीम थी, वो हमें वेलकम करती थी। वो दरमियान में भी कभी कोई चाय लेकर आ रहा है भागा भागा, कभी कुछ चीज़ें लेकर आते। तो मतलब एक्सीलेंट अरेंजमेंट था इन दोनों की तरफ से। ये आप लोगों की जो स्टोरी सुनी कि at the peak they had a cake with fresh cream on it. How luxurious is that? Of course, it's a monumental achievement, and again, a massive congratulations to you and the whole team and everybody present here today. I think मेरा एक सवाल अगला होएगा कि आपके लिए after having completed that, आपका एक personal takeaway and what is a message that you'd like to share with people, friends, family, colleagues who are here watching today, and as we share the film with the rest of the public as well. आप एक क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे that they should इसको अपना लें, एक मैसेज को? पर्सनल टेक अवे तो बहुत है। सबसे पहले टीम वर्क है, टीम बिल्डिंग है, फिर जो हमारा कल्चर ABL के अंदर है म्यूचुअल रिस्पेक्ट का, सपोर्ट का, वो हमारे बहुत काम आया है।
हम सीरियसली बिलीव करते हैं कि हम में से कोई इंडिविजुअल किसी और टीम के साथ जाता शायद ना कर पाता। ये सिर्फ आपस की हमारी थी, मोहब्बत थी और आपस में दोस्ती थी कि बहुत सपोर्ट शुरू किया। तो सेकेंडली ये कि वो जो कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये हमने वहाँ पे एक्चुअली होते देखा है कि हम स्लो स्लो चलें, जहाँ जहाँ अरे कोई थक गया तो उसने जी बैठ जाओ, सब लोग बैठ गए, किसी को जल्दी नहीं थी, हमको काम जाके करना कोई नहीं था वहाँ जाके, तो अगले स्टॉप पे जाके तो आराम से बैठते थे, चलते थे, साथ एक सपोर्ट करते थे। ये एक तो एक पर्सनल वे है, ये आप देखा है। और एक ये चीज़ भी सीखी कि प्लानिंग इज़ द हाफ जॉब डन, कि हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, चीज़ों को प्लान किया, लोगों से मिले जो पहले लोग जा चुके हैं, उनसे इंटरव्यू किए हमने, बहुत सारी वीडियोज़ देखी, तो यही था। सेकेंडली जैसे राफत साहब ने बताया कि जो बादरो ग्लेशियर है इज 63 किलोमीटर लॉन्ग विद एन एरिया ऑफ 553 स्क्वायर किलोमीटर, तो डेट्स अ ह्यूज एरिया, और अगर वो पिघलता है तो क्या इम्पैक्ट आएगा इसका। तो ये हमें देखना है कि पाकिस्तान जो है ना हमारा घर है और इस घर को हमें साफ रखना है, और अब हम जो है नेक्स्ट जनरेशन क्या छोड़ के जाएंगे। तो ये एक जरूर हुआ है कि अब आके ये देखा है कि अपना कार्बन फुटप्रिंट, अपने साल कार्बन फुट से कम करने की कोशिश की है, ऑफिस में भी कोशिश की है कि यहाँ भी प्लास्टिक कम इस्तेमाल की जाए, ट्रैश करते की चीज़, तो एक बहुत चीज़ें लर्न की है और उस एक्चुअल इम्पैक्ट देखा वहाँ पे क्या इम्पैक्ट होता है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। लिटिल थिंग वो वहाँ जाके पहाड़ों की हैबत देख के अपना वजूद बहुत छोटा लगता है, और ऐसे महसूस होता है कि यार कुदरत इतनी बड़ी है और हम जिस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतनी लग्जरियस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक छोटा सा नहाना जो है वो एक चैलेंज था उधर। तो जिस तरह पहले आबिद साहब ने कहा, वॉशरूम जाना इटसेल्फ एक चैलेंज था। तो ये चीज़ें, हम इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, हम कुदरत को कभी जो है हम इसका शुक्र नहीं अदा करते, और मेरे ख्याल में हमें हम्बलनेस जो है आने के बाद वो ज़्यादा आ गई है। ये एक फर्दर जो है इसमें मैं बिफोर के मैं कुछ कहूँ, मैं सिर्फ ये जो उन्होंने कहा ना कि हमने स्लो ट्रैक को अचीव किया, स्लो स्टडी चलते रहे, जो हम में से वीक होता था हम खुद ही असेस करते थे ताकि उसको फील ना हो वो पीछे रह गया, उसको सबसे फ्रंट के पढ़ते थे कि तुम लीड करो, हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो हम जब पहले कैंप पे पहुँचे तो वहाँ पे तो वो जो CKNP वाले अभी है नहीं है यासिर साहब, तो वो बड़े थे कि हम जब अशकोले पहुँचे, हम सारे ABL टीम यहाँ पे थी, N2 की टीम थी सारी, जो उन्होंने सारा किया हुआ था, सजाद साहब और फैसल वाली वगैरह सारा, हम सारे इन्जॉय कर रहे हैं। अब कैंपिंग थी, एक्साइटेड थे, बड़ा बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल आया हुआ था। तो उन्होंने मुझे साइड पे लेकर गए, मुझे ना सारे आपस में गप्पे लगा रहे हैं, ये भी थे मीडिया वाले, ये भी आपस में वो चिल कर रहे हैं सारा। तो कहता आबिद साहब आपको पता है हम जा कहाँ पे रहे हैं, टीम को पता बताया तो हुआ ना उनको। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है इस चीज़ के ये इतना मतलब सीरियस है, बड़ा सीरियस ट्रैक है ये, मतलब लग नहीं रहा है कि इतना वो होंगे। मैं कहा नहीं डोंट वरी, आप हमारे साथ हैं ना। नहीं 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 नहीं, हम तो थोड़ा सा क्योंकि लोकल है, हम थोड़ा फास्टली चलेंगे तो आप आराम आराम से आ रहे होंगे। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं सर, आप आगे जाके हमें मिल लेंगे तो कोई सा इशू नहीं है, तो हम आगे जाके मिल लेंगे उसे। तो वो जो अभी इन्होंने बात की बहुत वैलिड बात है कि जब वो उन्होंने वो फास्ट ट्रैक लिया तो ऑनेस्टली वो 4th मेंबर थे, तो जब वापस आए तो सिर्फ एक मेंबर हमारे साथ वापस आया, और वो भी घोड़े के ऊपर आ रहे थे, पैदल नहीं चल सकते क्योंकि फास्टली गया। हम माशाल्लाह 14 थे, 2 का 10 का इशू हुआ, वैसे फिट थे, और वो उसके बाद हम सारे वैसे स्लो स्लो चलते हुए वापस आ गए। अब टेक अवे जो है दावर ने हल्का से उसको इशारा किया, मैं समझता हूँ कि हम किसी भी एज में हों, कोई भी एज हो, आप कोई चीज़ सोच लें, कोई टारगेट को सेट कर लें तो वो अचीव हो जाता है, वो जितना बड़ा मर्जी टारगेट हो, उस टारगेट को आप साइड पे रख दें, उसको टारगेट को स्मॉलर टारगेट्स में ब्रेक कर लें। ऑनेस्टली हम सोचते थे कि हम अशकोले से पायो को सोचते थे कि बस पायो पहुंचना है, पायो से खरबूसे जाना है, खरबूसे से जी गोरे 2 जाना है, उर्दू कश जाना है, उससे आगे K2 ठीक है कहीं पे है, हमने पहुंच जाना 10 दिन के बाद। बट उस दिन सिर्फ एक ही टारगेट होता था। तो टारगेट अचीवमेंट के लिए आपने टॉप एंड को आइडेंटिफाई कर लिया, और उसके बाद स्मॉलर टारगेट पे फोकस होके पॉजिटिव माइंड के साथ, कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो हम चलते गए तो रास्ता पूरा हो गया। और दूसरा जैसे इन्होंने बात की है, एक तरफ आपके K2 है, ब्रॉड पीक है, G4 है, टेंगो टावर है, और फिर अल्लाह की कुदरत वहाँ पे देख हम इतने मुन्ने से नज़र आते हैं, तो फिर मोर हम्बल ऑनेस्टली भी मोर हम्बल। तो ये बहुत बड़ा एक लेसन था जो वहाँ पे हमने सोचा कि यार देखिए क्या कुदरत है। उसके एक माहौल की एक अपनी एक अजीब तरह की उसकी वो एक थी
कि उसको शायद हम वर्ड्स में एक्सप्लेन ना कर पाएँ, बट वो देख के इतनी इतनी चोटियाँ 8000 प्लस की, तो एक इंसान को एक अजीब सी फीलिंग आती है। तो ये था अभी। Thank you so much. जो वास्ट ट्रेन वहाँ में देखी ना, वीडियो बहुत अच्छी बनी है, वो वीडियो देखी, लेकिन वो कैप्चर नहीं कर सकता कितनी वास्टनेस वहाँ पे है, और जो पहाड़ों की ऊंचाई है, तो वो इंसान जो है ना बड़ा अपने आप को छोटा फील करता है वहाँ पे देख। थैंक यू। So we have some time for questions from the audience. First of all, I would like to appreciate the Right Bank on all the team members. It was really a great cause and a beautiful video. Secondly, I would like to ask a question. जैसा कि मैंने वीडियो में देखा कि आपके 2 टीम मेंबर्स जो थे वो आधे रास्ते में फिर वापस आ गए. So I just want to know कि what was their thought, what they were feeling at that time, and what was the morale of the team members who have to still go on for the journey. Thank you. Thank you so much. जी, बेसिकली इट वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हार्ट एंड माइंड। दिल कर रहा था कि आपने इतनी मेहनत की है, 3-3 घंटे रोज़ सुबह उठ के आप जॉगिंग कर रहे थे, तो आपको यहाँ से क्विट नहीं करना। सारी रात जागते रहे और ये सोचते रहे कि क्या करना है, तो आगे दिल कहता था कि आगे जाना है, मगर सेम टाइम जब सोचते थे कि मसला ये नहीं था कि मैंने उधर पहुंचना है या नहीं पहुंचना, मसला ये था कि टीम ने उधर पहुंचना है। तो कहीं मैं हैंडीकैप तो नहीं बन रहा टीम के लिए, बन ना जाए आगे जाके। और सवेयर जो है बेसिकली वहाँ सांस में इतना ज़्यादा डस्ट एलर्जी हो गई, उसकी वजह से सांस लेना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। तो कहीं आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ जाए, पूरी टीम वहाँ रुक जाए, तो बेसिकली कॉज इतना बड़ा था क्लाइमेट चेंज का, फिर ABL के तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, CEO बोर्ड की तरफ से इतना ज़्यादा इसके ऊपर जो है हमें अप्रिशिएट किया जा रहा था। तो हमें एज ए टीम ये झंडा जाके लगाना ही लगाना है। ठीक, तो ये कॉज जो है उसको देखते हुए ताकि हमारी टीम सक्सेसफुल हो जाए, हमने सोचा कि नहीं, हम इसको क्विट करते हैं, टीम ताकि आगे कंफर्टेबली चल सके। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। ये जब ज़ुबैर साहब और उमर इशफाक का जब डिसीजन हुआ कि वापस आ रहे हैं, तो मैं अपने कैंप पे था, तो मुझे टीम मेंबर ने कहा कि ऊपर आ जाए, एक मीटिंग हो रही है। तो मैंने उनको कहा कि यहाँ पे कौन सी मीटिंग होनी है। तो मीटिंग ऑब्वियसली यही डिस्कशन थी, एंड मेरे ख्याल में वो बाकी टीम के लिए एक बूस्टर था, क्योंकि हमें ये समझ आ गई थी कि अब इस कैंप से हम लोग या तो पीछे जा सकते हैं और आगे जाके रिटर्न पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें जो हमारे वेंडर थे उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया था कि अगर आपने रिटर्न करना है तो पायो इज़ द प्लेस एक्चुअली। तो ये वाक़या पायो पे हुआ था। तो उसके बाद फिर टीम एक्चुअली मेंटली तैयार थी कि अब रास्ता और कोई है नहीं है, अब सीधा ही जा सकते हैं। तो थैंक यू ज़ुबैर साहब, अनुमर साहब, क्योंकि आपके डिसीजन की वजह से मेरे ख्याल में टीम को का मोरल हाई हुआ, और ये एक बहुत ब्रेव डिसीजन था ऑनेस्टली। हम आपको बाद में मिस भी करते रहे, लेकिन हमने ये डिस्कस करते रहे कि ये डिसीजन बहुत ब्रेव था सर। थैंक यू। आगे जाके इस किस्म का सिनेरियो था जो हमने ऑब्जर्व किया कि वहाँ से वापसी काफ़ी मुश्किल थी, अब ओनली आना, तो वो शायद सारी टीम ही वापस आ जाती। तो इन दोनों के जो डिसीजन था वो इन्होंने इमोशनली नहीं लिया, और जो एक्चुअल रियलिटी थी उसको देखते हुए डिसीजन लिया। मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा टास्क हो तो उसको सामने टेबल पे हमने रखा कि अब क्या करना है, बैठे थे, क्योंकि पायो में हमारी एक नाइट एक्स्ट्रा थी टू क्लेमेटाइज हो जाएं, ज़ाहिर है एक हाइट को हम गेन कर रहे थे, तो उसकी वजह से फिर वो चीज़ चल रही थी। तो उस पर हमने वो सोचा कि ये डेफिनेटली इनका बहुत ब्रेव डिसीजन था, और हमने आगे जाके देखा जब एक्चुअल, तो इस अगर ये साथ होते या डिसीजन ये थोड़ा सा इमोशनली ले गए होते तो शायद ये पॉसिबल ना होता। तो ये वाकई ये एक चीज़ थी सर। I think we have time for one more question. सबसे पहले तो thank you ABL for this wonderful initiative, and this is a very important conversation that we're having about plastic bags and all of this, so well done for this. मैं सोच ही रहा था जब मूवी देख रहा था कि मेन स्ट्रीम बैंक ने इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव और रिस्क कैसे लिया। There was a woman behind it and no surprises there. So well done. मेरे 2 सवाल हैं, नॉन ट्रैकर्स हैं चूँकि आप लोग। पहला सवाल तो ये है कि आमतौर से जज्बे से या जोश से या डोपामिन किक से पहुँच तो जाते हैं, इट्स द वे बैक जब एक्सीडेंट्स होते हैं या थकावट होती है। तो वापसी का सफ़र कैसा था?
और एक और सवाल ये कि नॉन ट्रैकर्स के बारे में एक और बात भी है कि जब वो ऐसा ट्रैक करते हैं तो किसी ना किसी रात को अकेले वो रोते ज़रूर हैं, तो आप में से कौन कौन रोया था वो भी ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने। पहला क्वेश्चन मैं पहले एड्रेस करता हूँ, बाकी टीम मेंबर ज़रूर इसमें कोई ना कोई ऐड कि हम जब ट्रैक कंप्लीट करते थे एवरी डे 8 घंटे 10 घंटे मैक्स, हमने एक दफ़ा 11 अराउंड 12 के हमने एक 12 आवर का एक ट्रैक किया था, वो सबसे एक्टिव 30 किलोमीटर के। हम जब आके कैंप में जाते, हम अपने वो कैंप में नहीं जाते थे, हमारा एक वो बड़ा ज़बरदस्त, इन्होंने हाजी साहब हम उनको साथ थे, तो वो बड़ा ज़बरदस्त एक हमारा किचन टेंट था, वहाँ पे सबसे SOP सेट था, वहाँ पे बैठना है। और वहाँ पे बैठ के हम सारे एक दूसरे को पहले थोड़ी देर तक पॉज हो कैसे खामोशी से देख ही रहे होते थे, हाँ भाई ठीक है। और उसके बाद फिर डिस्कशन शुरू होती थी, हाँ क्या हुआ, फिर कोई ना कोई अपना किसी ने वो जो फारूक है उसने अपना वो बजाना शुरू कर देना, किसी ने अपनी बात करनी, तो हम इतने लाइट हो जाते थे। तो मैं घंटा डेढ़ जब हो जाता था तो वो पूरी उसके बाद हम बाहर निकलते तो हम बिल्कुल मेंटली क्लियर होते थे। अच्छा, जहाँ तक आप फीलिंग की बात कर रहे हैं तो अच्छा, रोया कोई भी नहीं, ये कंफर्म बात है कि हाँ बिल्कुल कोई भी नहीं रोया। अच्छा, उसकी वजह ये है उसकी वजह ये है कि जब उसके बाद हम जाते थे तो हम 7 साढ़े 7 बजे तो सो जाते थे, फिर सुबह 4 बजे हम उठाए जा रहा होता था, तो रोने का तो शायद किसी को ख्याल ही नहीं था। जो हमारी जो बातें थी वो पहले ही उसको आपस में डिस्कस कर लेते थे, काफ़ी चीज़ों को जिसमें एक स्ट्रेंथ मिल जाती थी नेक्स्ट डे के लिए। रोने का टाइम भी नहीं मिला वो सो जाते थे। और सेकेंडली जब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे हमें जो फीलिंग्स थी ऑनेस्टली, एक तो जो जैसे राफिया साहब ने कहा, सारा हयात साहिबा ने जो बताया, यहाँ पे हमने वी आर आई विटनेस, हमने वाकई देखा ग्लेशियर का एक लेवल था वो नीचे आ चुका था, जो लोग बता रहे थे वहाँ पे। और वहाँ पे जब सुबह उठे बिल्कुल चिल्ली, वो पूरा आइस हुई थी सारा चीज़ पता। तो जब हमने वहाँ पे ABL का फ्लैग लगाया तो एक जो मोराल था, आपने देखा नहीं आखिर में हमने कितनी जंप्स लगाई हैं, वो उसके बाद अचीवमेंट के बाद था। वापसी में तो हमें सारा रास्ता देखा हुआ था, हम तो ऐसे भागते हुए वापस आए हैं, बल्कि कई जरियाओं को छलांग लगाते हुए आए हैं। और ये क्लाइमेट चेंज की जो बात इन्होंने की है, वाकई जिस रास्ते से हम गए वो रास्ता वापसी पे नहीं था, ऑनेस्टली बिल्कुल चेंज था। हम बहुत टॉप के ऊपर से आए थे और दरिया इतने ऊपर आ चुके हुए थे और ग्लेशियर्स का बिल्कुल शेप ही चेंज हो चुकी हुई थी। अच्छा, एक दूसरे को रोने हमने दिया नहीं एक्चुअली, और साथ रहे एक दूसरे के, बातचीत करते रहे। और कैंप में आके नवजीत भूल के सबसे अच्छी हमारी ऐश होती थी कि यार टैंक लेके आओ, तो हम टैंक पीते थे, वो सब हमारी बहुत वहाँ पे ना एक अचीवमेंट होती थी कि हम टैंक पिए वहाँ पे। तो एक दूसरे गपशप बहुत लगी, इसमें रोना का बिल्कुल मौका नहीं। वापसी का सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग था, जैसे उन्होंने कहा कि वापसी में दरिया में तो 3 दिन वहाँ बारिश नहीं हुई, तो दरिया शिकर का लेवल बहुत ऊंचा चला गया था। तो हम जाते हुए हम जिस रास्ते से गए थे वो दरिया बुर्द हो गया, एक तरह से हो गया। और हमें बताया गया कि अब ये नेक्स्ट सीज़न ये रास्ता निकलेगा, वापसी में वो रास्ते से वापस आए। तो हम दूसरे से पूछते थे, यार ये वही रास्ता था, यहीं से गए थे हम, तो पता नहीं लगता था। बाकी एक बड़ी हाईलाइट वापसी की ये है कि आबिद साहब और मैं जहाज़ से बैठे इस्लामाबाद के लिए, तो हम थोड़ा सो गए, तो वापस निकले तो उठे जब, तो हमने कहा, मैं मुझे केटू ख्वाब में आता, कहते मुझे भी केटू ख्वाब में आता रहा। ऑनेस्टली जब हम उठे तो मुझे भी वो केटू का ही ख्वाब आ रहा था, तो इनको भी तो एकदम से जब वो लैंड किया तो आंख खुली, तो मैंने कहा, कहते हैं यार मैं जो केटू का ख्वाब है, क्या अच्छा मुझे भी केटू का ख्वाब आया। हम फर्स्ट सीट्स पे थे, हम जब बाहर निकले तो ये मुझे कहते हैं वो बोर्डिंग ब्रिज है उसके पास CO साहब नजर आए, कहते वो देखो CO साहब मुझे लगता है। मैं कहा यार तू यहाँ पे भी ख्वाब देख रहा है, यहाँ पे बोर्डिंग ब्रिज तक कौन आएगा? कहते तुम्हारे दिमाग को असर हो गया, उसको ना चेकअप कराना। मैं नहीं, मुझे देखा उनको मैंने यहाँ पे। वो बड़ा अच्छा मोमेंट था कि हमने बड़ा ऑनर्ड फील किया कि हमें ऐसे वेलकम किया गया वहाँ पे पूरी टीम को, और वो बिल्कुल एंड पे जाके उन्होंने किया, हम बिल्कुल आ रहे हैं, इतने एक बड़ा फील हुआ। हम तो बिल्कुल फैमिली से भी दूसरी चीज़ों से बिल्कुल आउट हुए हुए थे, तो एकदम से इनको देख के बड़ा वो अच्छा लगा वहाँ। हमारी जब डिस्कशंस होती थी, ये बात कई दफ़ा डिस्कस हुई, आबिद साहब, जुबैर साहब, नासिर साहब की, हमने वहाँ जाके फ्लैग लगाना है, अब ये चीज़ हमारे दिमाग में थी। तो जब फाइनली हम K2 पहुँचे और हमने जब वो एक्टिविटी की, जो आपके असल क्वेश्चन था कि जब वापसी पे क्या था, तो जब लिटरली हमने वो फ्लैग लगाया तो जो हमारा मोटिवेशन लेवल था वो इट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन एक्चुअली। हमें वो आपने क्लिप भी देखा है कि जहाँ पे हम K2 के आगे खड़े हैं और पूरी टीम वहाँ पे इकट्ठी है, वो फीलिंग मेरे ख्याल में, मेरे टीम मेंबर्स बैठे हैं, हम लोग रोए नहीं, लेकिन मेरे लिए पर्सनली वो एक इमोशनल मोमेंट बन गया था। लेकिन ये कि वो फिर हमारी एक और उसमें क्लिप है जहाँ पे हम सारे जंप कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा वेल डायरेक्टेड शॉट था दावर, एंड इट वेंट रियली एक्सीलेंट। I think that's all the time we have for the question and answers right now.